Good morning, students. I hope you all are doing great at your home and taking your classes seriously. Today we are going to deal with most important topic. This is actually a series of things which is actually been seen right from grade 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. And there are few things which we might know very well, but we still make a lot of mistakes. So let's see in the next slide what are the kinds of mistakes that we usually do while attempting gap filling. And this is important topic because in 9th and 10th class it holds 4 marks, and you all know that 4 marks in exams matters a lot. Okay, what actually is gap filling? A gap filling is a practice exercise in which learners has to replace words missing from a text. So you will be given a kind of passage or few lines where they will be filling the blanks and you have to fill a missing word from there. These words are chosen and removed in order to practice a specific language point. So you have to choose, you will be given some options. From that options you have to choose कि कौन सा appropriate word है which we are going to place there. Okay, so what do you need to check? I hope आपने last time भी observe किया होगा. We completed tenses and then in exams आपको editing और omission के पैसेज दिए गए थे. So that exercise was based completely on tenses. So आपको अपने जब भी आपको omission, gap filling या editing इन तीनों में से कोई भी मिलेगा तो you have to check all these things: determiners, prepositions, modals and tenses किए हैं उसमें ये नहीं है. Tenses we have already covered and we are going to cover these topics later on, these 3 topics. And then conjunction. Now these are also important rules which I have already explained you in editing, that is read all the sentences. When you will be given a passage, आपको तुरंत करना स्टार्ट नहीं होना है. You have to read all the passage twice, not even once. You have to read it twice ताकि एक बार में सिर्फ आप पढ़ो, सेकेंड टाइम में आप उसको समझो अच्छे से कि व्हाट इज़ द पैसेज एक्चुअली ट्राइंग टू से, सो दैट आप पढ़ने के बाद उसे ईजिली पता लगा सको कि व्हाट इज़ द मिस्टेक. सी व्हाट आई हैव मोस्टली सीन इज स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी रहती है टू अटेम्प्ट लिटरेचर सेक्शन और सम अदर सेक्शन दैट व्हेन दे सी दिस पैसेज ऑफ एडिटिंग, ओमिशन और गैप फिलिंग, दे थिंक ये ईजिली हो जाएगा. एंड क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजिली गेन टॉपिक्स हैं जिसमें मार्क्स ईजिली गेन हो सकते हैं, बट दिस इज़ द प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक्स मिस्टेक्स. दे जस्ट रीड वंस. इनफैक्ट कई तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक एक लाइन को पढ़ के दे कंप्लीट दे राइट द आंसर. सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग. You have to read all the sentences twice. Only then आप उस passage को समझ पाएंगे and then you will be able to attend it properly. Then you have to know the tense कि वो किस tense में बात हो रहा है, because ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको 5 lines दिए हैं तो वो पूरे 5 tenses नहीं होंगे. There will be either 1 or 2 tense used in that. So you have to know the tense first कि किस tense में वो पूरा passage बोला जा रहा है. Then there will be error in each line. Obviously in 5 lines in exams you will be given 5 lines and out of those 5 lines you have to attempt only 4. So there will be error in each of the line and you have to find that error और आपको वो gap fill करना है and you will be given options down. Then what kind of errors will be there? There will be errors of tenses, verbs, preposition, articles, determiners and modals. And I hope all these topics you already have covered in 8th standard. तो आपको इन सब के बारे में पता है because ये ऐसे topics है which we already start from 6th standard. Okay, here goes more rules. So basically there are not plenty of rules, थोड़े rules हैं which I thought to explain you, and these are some of them. The plus adjective,
इज इक्वल टू सुपरलेटिव डिग्री। आपने ये पढ़ा होगा एडजेक्टिव में, व्हाट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग। कंपैरेटिव व्हेन वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स, फॉर एग्जांपल राम इज टॉलर देन श्याम, so here we are comparing between two persons. And now superlative, जहाँ we are comparing more than 2 or 3 persons. तो इसमें जब भी हम यूज़ करेंगे तो फिर सुपरलेटिव में हमेशा ये याद रखिएगा कि द आता है। लाइक हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। द हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस क्लास इज़ 40। तो हम उस पूरी क्लास का स्कोर बता रहे हैं, एंड देयर आर मोर देन 10, 20 or 30 students in the class. So here we are going to use the adjective. The plus adjective, adjective here is highest. तो हम हमेशा the यूज़ करेंगे जब भी superlative डिग्री आपको दिखती है। The latest, again here the. तो whenever you are going to see any superlative degree, तो आप उसके आगे the ही लगाएंगे because that is a appropriate word. Next, could is used to refer possibility. could क्यों कब यूज़ होता है? possibility बताने में। जैसे दिस कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। मोस्टली हमें क्या लगता है कि कुड सिर्फ पास्ट टेंस में ही यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। कुड प्रेजेंट टेंस में भी कभी कभार यूज़ होता है। जैसे दिस सेंटेंस, दिस कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं इसमें। तो कुड पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ये हाँ शायद हो सकता है। कुड कभी भी कंफर्मेशन नहीं देता है, इट ओनली शोज पॉसिबिलिटी। मूविंग फॉरवर्ड, आई होप दिस इज understood clear to you. Whenever you're going to find superlative degree, you're always going to put the in front of them, and could is always referred to possibility कि there are chances, ये होने के chances हैं, but वो confirm नहीं बताते हैं। Okay, next. हु सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब आपको पता है WHO हु हम कब यूज़ करते हैं? दिस आर द क्वेश्चन वर्ड्स, राइट? तो इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, MV मीन्स मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जब भी हम हु कोई भी ऐसा क्वेश्चन पुट करते हैं तो देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट देयर। एंड हु हम कब यूज़ करते हैं? दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन वी आस्क समवन समथिंग। फ्रॉम हम कब यूज़ करते हैं? फ्रॉम का मतलब होता है से। यहाँ ट्रेन यहाँ से वहाँ गई, इट मूव्ड फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू नोएडा, तो ये इसका मतलब होता है से। लाइट इज कमिंग फ्रॉम द रूम, लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट रूम से आ रही है। नेक्स्ट, मस्ट हम कब यूज़ करते हैं? ये एक कंपल्शन या नेसेसिटी होता है। कंपल्शन मतलब ज़रूरी, आपको करना है। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, तो मैं आपको कंपल्सरी बता रही हूँ दैट यू हैव मस्ट गो टू द डॉक्टर। नेसेसिटी मतलब कि इट इज़ ज़रूरी है। यू मस्ट टेक मिल्क इन द मॉर्निंग, तो ये आपकी ज़रूरत बताता है और कंपल्शन बताता है। तो मस्ट के दो हम मीनिंग बताते हैं। देन पुलिस इज ऑलवेज अ प्लूरल वर्ब, ये हमेशा याद रखना। बट इन सम केस, फॉर एग्जाम्पल द मुंबई पुलिस, द कैलिफोर्निया पुलिस, तो इसमें हमने क्या लगाया? एक नाउन आगे लगाया है कि ये बता रहा है कोई प्लेस के बारे में। मुंबई की पुलिस, इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब। द मुंबई पुलिस इज सर्चिंग फॉर द थीफ, तो हमने इसमें सिंगुलर वर्ब क्या लगाया है? इस, क्योंकि अब मुंबई पुलिस को एज अ होल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई होप दिस रूल आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इन योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? तो ये हमेशा याद रखना, पुलिस सिर्फ अगर सिर्फ एक वर्ड पुलिस दिया गया है तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैव अ प्लूरल वर्ब। बट if there are some nouns in front of them, for example Mumbai police, California police, Delhi police, बिहार पुलिस, इसमें क्या है? एक प्लेस का आगे दे रखा है नाउन, तो इसमें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे।
So these are the basic things that we have to keep in mind before attempting gap filling, so that you're not going to do any mistakes there. And the main thing is prepositions. You have to go through prepositions, क्योंकि most of the time prepositions के ही आते हैं, but students get confused in prepositions. Prepositions topic I have not covered yet. Very soon we are going to study that topic as well. Next, whenever we are going to find this word demand, there are few words जिसके आगे एक ही चीज़ लगती है. जैसे डिमांड हो गया, अगर डिमांड लिखा रहेगा तो आप उसके आगे अगर फिल इन द ब्लैंक्स होगा और आपको ऑप्शन दिए गए होंगे इन, ऑन, एट, फॉर, हमेशा याद रखना इस डिमांड के आगे ऑन ही आएगा. नो अदर ऑप्शन सूट्स इन फ्रंट ऑफ डिमांड. So the only word that we are going to use here is on. Next, as you all are aware that had हम कौन, जब whenever we are going to find had, that means वो third form होगा. जैसे he had played, he had sung, written, ये सारे क्या form है? ये third form है. So these are the few basic rules. एज सच बहुत ज़्यादा रूल्स भी नहीं होते, जैसे ओमिशन मैंने आपको थोड़े बताए थे. दिस वर द फ्यू बेसिक रूल्स विच आई थॉट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ बिफोर अटेम्प्टिंग गैप फिलिंग, बिकॉज इन द नेक्स्ट एग्जाम्स आपके जब UT2 होंगे, आई एम गोइंग टू ऐड दिस टॉपिक गैप फिलिंग, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपके गैप फिलिंग में, ओमिशन में, एडिटिंग में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टेंसेस, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन के सारे कवर होते हैं. इनफैक्ट ये टॉपिक्स जो प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये जो टॉपिक्स है सेपरेटली नहीं आते हैं, ये गैप फिलिंग, एडिटिंग या ओमिशन में ही आते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट गो थ्रू गैप फिलिंग एंड एज मेनी रूल्स, जितने भी आपको क्वेश्चन से जाते हैं, यू ऑलरेडी हैव इंग्लिश प्लस बुक. जस्ट गो थ्रू ऑल दीज रूल्स एंड आपको जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स दिखते हैं जहाँ गैप फिलिंग होती है, मेक इट अ हैबिट ऑफ डूइंग इट अगेन, सॉल्विंग इट मोर एंड मोर, सो दैट आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके. ओके, लेट्स जस्ट वंस गो थ्रू ऑल द रूल्स. ओके, मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रीड द पैसेज और द सेंटेंसेस ट्वाइस. आपको 2 बार पढ़ना है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what actually the passage is talking about. And if you're going to read it twice, तो आपको पता चल जाएगा कि in which tense वो उस पूरे passage में बात हो रही है. Okay, then wherever you're going to find superlative degree, you're always going to put the in front of them. Could is always referred for possibility. क्या पता ये चांसेस हो सकते हैं, तो वहाँ हम could लगाएंगे. could आप past tense में भी यूज़ कर सकते हैं, and there are few sentences where could is used in the present tense, like in this sentence, this could be very harmful for us. Then coming to the next rule, here I said who is subjective case. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. in this you're going to find helping verb, main verb और object आपको वहाँ दिख जाएगा. wherever you're going to find who. from हम बोलते हैं कहीं से वो चीज़ आई. फॉर एग्जाम्पल, from का मतलब होता है से. लाइट इज कमिंग फ्रॉम द रूम. लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट रूम से आ रही है. ओके, मस्ट हम या तो कंपल्शन जब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यू मस्ट टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो आपको इसमें मैं क्या बता रही हूँ आपको कि ये कंपल्शन है, आपको करना है ये. यू मस्ट कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क बाय टुडे. ये कंपल्शन है दैट यू हैव टू डू इट. एंड नेसेसिटी, यू मस्ट विजिट टेम्पल एवरी मॉर्निंग. तो ये नेसेसिटी है, आपको ये कंपल्सरी नहीं बोला जा रहा है करने के लिए, बट ये आपकी ज़रूरत होनी चाहिए दैट यू हैव टू visit temples early in the morning every day. And then I said police, whenever you're going to find this word police, it is always going to take a plural verb, but there are few cases where you're going to find singular verb. And what are those cases? Whenever there will be a noun in front of police, you're going to place a singular verb after that. For example, the Mumbai police, the California police, the Delhi police. इसके ये पुलिस के आगे ये प्लेस बता रहे हैं कि वो कहाँ की पुलिस है, तो इसके आगे आप हमेशा
इज लगाएंगे या सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. इज हम कब लगाएंगे? प्रेजेंट टेंस में. वॉज हम लगाएंगे पास्ट टेंस में. Next and the last rule. Wherever you're going to find demand, you're always going to place on in front of them. And then had हम कौन से verb में यूज़ करते हैं? Always verb का थर्ड फॉर्म. ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही होती है. तो here you're going to use थर्ड फॉर्म. अगर आपको had दिख गया सेंटेंस में तो याद रखना उसमें ed या फिर sung written ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जो verb की थर्ड फॉर्म होती हैं. I hope students this video is clear to you, and this is very important because it consists of 4 marks, and 4 marks is important in your exams. So again I'll tell you, आपके पास practice papers already हैं. Solve all the questions in the practice papers of gap filling, and if you have any doubts regarding that you can ask me. Thank you students.